Good morning students. Today in this session we are going to discuss chapter number 9th algebraic expression as our exercise 9.4 is going on and we have discussed till question number 5th. Now today we will discuss question number 6 to 14th. Okay, so our question number 6 is find the value of the algebraic expression. We have given an expression and we have to find the value. ठीक है, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 36x² प्लस 60xy प्लस 2y² व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -7। देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या दिया है 36x² प्लस 60xy प्लस 2y² एंड विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू व्हेन x is equals to 4 and y is equals to -7. So what we will do, we will simply put the value in this given expression. हमें given expression में just value put करनी है और इसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 36 मल्टी 4, वैल्यू ऑफ x is 4, so we'll put value of x is 4. Okay, plus 60xy means we'll have to multiply, correct, plus 2y². What is the value of y? -7 is given to us. Okay, no, so 36 multiplied by 4² is equals to 16 plus, now we will multiply all this. We will see that there is a sign of minus and here is sign of plus, so plus minus will be minus, so minus will remain here. Okay, after that we'll have to multiply all that. We'll see that 6 7s are 42. Now we'll multiply 42 with 4. 4 2s are 8, 4 4s are 16 and 1 0 is left, so that will be 1680. Okay, plus 2 multiply, here the negative sign is inside but the power is even, so the negative sign will change into positive as we discussed in chapter, so that will be 49. Okay, so now you will multiply 36 multiply 16, you will do it yourself, minus 1680 plus 98, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करेक्ट। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7th इज ऑल्सो सेम। इन क्वेश्चन नंबर 7th वी हैव गिवन द एक्सप्रेशन लाइक क्वेश्चन नंबर 6th एंड यू विल हैव टू पुट द वैल्यूज x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 7. Okay, now we are coming to question number 8. 6th and 7th are same, so we just did one question, correct. Next is if we have given if x plus 1 by x is equals to 3, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1 by x² की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने क्या लिख दिया, if x plus 1 by x is equals to 3 and we have to find the value of this, so I put the question mark, correct. So आप देख रहे होंगे कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैसे आएगी, x² प्लस 1 by x²। अब आपको देखने में पता लग रहा होगा कि अगर आप इस सारे का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, करके देखते हैं, फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। अब हम स्क्वायर करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस 1 by x होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि होल स्क्वायर लिखना है, इसको आपने अलग अलग नहीं लिखना। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। वी डिड द आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab. In the particular question a is equals to x and b is equals to 1 by x. ठीक है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं पहले। So what we'll do, we have to do the square of this. So we will do a² plus b² plus 2a. What is a? X. What is b? 1 by x. Correct. So 3 square is equals to 9. X will be deducted by x
that will be x square plus 1 by x square plus 2 is equals to 9. Now see which for which we have to find the value. We'll have to find the value of x square plus 1 by x square. Now you will see that we had x square plus 1 by x square, but 2 is extra. So what we'll do, we'll take 2 in the right hand side. So x square plus 1 by x square is equals to 9 minus 2. x square plus 1 by x square is equals to 7. करेक्ट. हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई. हमने क्या किया, हमें x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ था, उसकी वैल्यू हमारे पास 3 गिवन थी. ओके तो हमने देखा कि हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर चाहिए. ओके तो हमने क्या किया, उसकी स्क्वेयरिंग कर दी. वी राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. हमने दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग कर दी एंड वी अप्लाइड दी आइडेंटिटी. हमने अब आइडेंटिटी को अप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वेयर, क्योंकि ये इसी की फॉर्म में है. ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई. करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th. देखिए क्वेश्चन नंबर 9th है जो, उसमें हमें क्या गिवन है, यूजिंग द आइडेंटिटीज़ इवेल्युएट द फॉलोइंग. आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है और गिवन को जो है दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, उसको इवेल्युएट करना है. ओके फर्स्ट इज वी हैव गिवन 102 स्क्वेयर. वट यू कैन डू, देखिए आइडेंटिटी को हमें अप्लाई करना है, उन्होंने बोला है. तो आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सिंपली 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा. Okay, you'll have to keep in mind that you will have to apply the identity here. Now what you can do, you can write this as 100 plus 2 whole square. Can we write it? That is in the form a plus b whole square. So a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. So what we'll do, a square plus b square plus 2. A is 100 and B is 2. 2AB. Correct. So plus 4 plus 2 2s are 4. Sorry, there is a sign of multiplication because 2AB. Correct. 2 2s are 4 plus 100. What it will be? 400. Now we will add them. 10404. That is your answer. Okay. So this is the way to do. Next is we have given 311. We can write it 300 plus 11 whole square. Next is 72. We can write it 70 plus 2 whole square. Next one is 80 plus 80 square, 89 square sorry. So 89 square को हम 80 plus 9 square भी लिख सकते हैं या 90 minus 1 square भी लिख सकते हैं. तो उस पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी. देखिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा हिंट दे देती हूँ. 4th पार्ट में आपको दिया है 89 स्क्वेयर. यू कैन राइट इट 80 प्लस 9 होल स्क्वेयर और यू कैन राइट इट 90 माइनस 1 होल स्क्वेयर. ओके जब आपने इसको 80 प्लस 9 होल स्क्वेयर लिखा तो ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वेयर. यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. और यहाँ पे 90 माइनस 1 है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. आप दोनों में से कोई भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5th. इसमें आप 118 स्क्वेयर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 18, या आप इसको लिख सकते हैं 120 माइनस 2. ठीक है, इसको भी इसी तरह से आप करेंगे. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंट है उसको हम कैसे करेंगे. ये है 13 मल्टीप्लाइड बाय 7. दिस इज पार्ट नंबर 8th. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वी आर गिवन 13 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो व्हाट वी कैन डू, यू विल सी दैट हियर 13 कैन बी रिटन एज 10 प्लस 3. ठीक है, एंड 7 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 3. Okay, so that is a plus b, a minus b. We will apply the identity. What is the identity for a plus b, a minus b? That will be a square minus b square. Here a is equals to 10. So we did the square of this, a square minus
b square. So that is 100 minus 9 and that is equals to 91. Correct. In next question, question number 8, you can write it 70 plus 3 and this can be written as 70 minus 3. Now this is decimal. I will tell you this. Okay. In ninth part, we are given 9.3 multiplied by 8.7. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 9 प्लस 0.3. जब 9 में 0.3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9.3. और जब 9 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8.7. Same identity you will apply a plus b, a minus b. So it is a square minus b square. You do the square of this and square of this. इसका square करेंगे और subtract कर देंगे तो आपके पास desired answer आ जाएगा. ओके, क्लियर? अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10th है, वो भी डेसिमल में है, उसका भी हिंट दे देती हूँ मैं आपको. 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.5. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हमने लिखना उसी फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चंस को किया था. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हमने लिखा 10 प्लस 2.5. ओके, देखिए मैंने 12.5 को लिखा 10 प्लस 2.5 और 11.5 को लिखा 10 प्लस 1.5. आपने देखा कि इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी नहीं बन रही, a माइनस बी होल स्क्वायर भी नहीं अप्लाई हो रहा और a प्लस बी a माइनस बी भी नहीं हो रहा, बिकॉज दोनों में प्लस का साइन है और यहाँ भी 10 में कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ भी 10 में कुछ ऐड हो रहा है. तो आपने एक आइडेंटिटी की थी x plus a into x plus b, that is equals to x square plus a plus b into x plus ab. You will apply this identity here and how you will apply here? A is equals to 10. You can write for your clarification also. A is equals to 10, sorry, x is equals to 10, a is equals to 2.5 and b is equals to 1.5. According to this identity, you will just put the values 10 square plus 2.5 plus 1.5. This is a plus b and what is x? 10 plus 2.5 multiplied by 1.5. Now you will just calculate that. Okay, that is 100 plus 2.5 plus 1.5, that is equals to 4 multi 10, that will become 40, plus you will multiply these both and then you will calculate this. Okay, next our question number 10th we have discussed. In question number 11th, that is written as 100 plus 5, 100 minus 5. You can do it easily. Same way this question 150 plus 3, sorry 150 plus 3 and 150 minus 3. Correct. Next is 10th question, find the value of the expression. You will have to find the value of expression as we did in question number 6th and question number 7th. Okay, next is question number 11th. We are going to discuss question number 11th. We are given that x minus y is equals to 9, xy is equals to 2 and we have to find the value of x square plus y square is equals to question mark. हमें क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई 9 के इक्वल दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 2 दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमने एक क्वेश्चन अभी पीछे किया था, क्वेश्चन नंबर 8. हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, उसी की तरह करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. क्यों हम स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास x माइनस वाई गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हमें पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी. तो हम करके देखते हैं. बाकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी इंक्रीज होगी और आपको आइडिया होगा कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है. ओके, सो वी डिड द स्क्वेयरिंग, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर
plus b square minus 2ab. We already did the identities and this is equals to 81. 9 square is equals to 81. Now what you will do, you will have to find the value of this x square plus y square. You will keep it as it is and you will notice one thing that xy value is also given to us. We will put the value of xy. हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे because xy is equals to 2 given. Okay, is equals to 81. So x square plus y square is minus 4 is equals to 81. X square plus y square is equals to 81 plus 4. X square plus y square हमारे पास क्या आ गया 85. क्लियर हुआ? हमें वही वैल्यू चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, वो हमें मिल गई. तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दी एंड वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दैट इज इक्वल्स टू 81 एंड आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ xy इज इक्वल्स टू 2 एज वी आर गिवन इन द क्वेश्चन. Correct. So we put the value and we did the constant side on right hand side. After minus will transform into the right hand side, that will become positive and the x square plus y square is equal to 85. Correct. Next is question number 12th. I am just giving you the hint in this question. X plus 5y is equals to 9. xy is equals to 4. You'll have to find the value of x square plus 25y square is क्वेश्चन मार्क. अब आपको क्वेश्चन को देखते ही आइडिया हो जाएगा कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए. इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है, जब हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 2ab और ab की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे. अगेन यू विल राइट द सेम थिंग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. x प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर. सो इसका स्क्वायर कीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. कुछ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं. यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा. यू विल हैव टू अप्लाई दी आइडेंटिटी प्रॉपरली. सो दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x 5y. x क्या था a और b क्या है 5y. करेक्ट. एक्स स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मीन्स इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर. इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी प्लस 10xy इज इक्वल्स टू 81. अब आगे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आप एक्स वाई की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और फिर इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. ओके, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया 11th में. नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन. वी आर गिवन x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर प्लस 1/x रेज टू पावर 4. ओके, सेम थिंग विल डू स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स. आप इसको कंप्लीट लिख लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स. ठीक है. सो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर. प्लीज डू द स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, डोंट डू इट ऑन वन साइड. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab is equals to 36. Okay, so x square plus 1/x square, x will be deducted by this minus 2 is equals to 36. So x square plus 1/x square की वैल्यू क्या आ गई 38. मैंने डायरेक्ट लिख दिया 36 plus 2. You will add one step here. ओके, अब देखिए मेरे पास x square plus 1/x square की वैल्यू तो 38 आ गई, इजीली आ गई. बट आई विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4. सो अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 आ जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगी, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. मैंने फिर से दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग कर दी. x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38 स्क्वायर। करेक्ट। सो मैंने अब क्या करना है, मेरे पास क्या आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है मेरे पास, है ना। तो मैं आइडेंटिटी क्या अप्लाई करूँगी इस पर, ए स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ए क्या है आप लिख लो यहाँ पे, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1/x स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैंने 1/x स्क्वायर, ये मेरे पास ए है ये बी है, प्लस 2 ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है एक्स स्क्वायर, और 38 का स्क्वायर होता है 1444, ठीक है। अब आप देखोगे कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो दैट विल बी x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, दिस विल बी डिडक्टेड बाय दिस, प्लस 2 इज इक्वल्स टू, okay, so I had to find out the value of 1/x raised to power 4 plus x raised to power 4 plus 1/x raised to power 4, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो we got the value that 1442, ठीक है। अगर वो हमसे क्या पूछता, x raised to power 8 पूछता तो हम फर्दर इसकी स्क्वायरिंग कर देते। ओके, next is question number 14th, last question of the exercise. We are given x plus 2, x minus 2, x square plus 4. Very easy question. You will see that here a plus b, a minus b. So a plus b, a minus b आप यहाँ लिखेंगे identity which you are going to apply. Okay, that is a square माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आप इसको कंप्लीट ब्रैकेट में, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये फिर से क्या बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बी क्या है 4, तो ए क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, दैट विल बी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। करेक्ट, समझ आया सभी को। देखिए मैंने क्या किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी अप्लाई किया, वो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर से ए माइनस बी, ए प्लस बी अप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। ओके, its second part is also same. I am just giving you the hint of that. X plus 1, x minus 1, x square plus 1, x 4 plus 1. Okay, you will see that x minus 1, x plus 1, that will be a plus b, a minus b, और तो कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा a square minus b square. X square plus 1, x raised to power 4 plus 1 is already given. So a minus b, a plus b, again it will be same in this question, that will be x raised to power 4 minus 1, x raised to power 4 plus 1. Again it is a minus b, a plus b, but a is equals to x raised to power 4 and b is equals to 1. So it will again be a square a minus b, a plus b, that is a square minus b square. A square, a is x raised to power 4 square minus b square. Okay, so that is x raised to power 8 minus 1. This is all about exercise 9.4. If you can't understand it in one time, please watch the video again and again, because this is a new concept for you. It might take time. So please try to understand with the help of video. If there would be any problem, we'll discuss in the online session. Okay, thank you so much.